نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چمنستان رضوی کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے نبیوں کے امام، سارے نبیوں کے تاجدار، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار ارب و عظم و فخر اعظم و بنی آدم، کائنات کے اولی فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. پڑھے باواز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد باقی صلی اللہ علیہ وسلم. جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرم کرتے گئے، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائے دی، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائے دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کے دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کے دعائیں دی. اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم اللہ شانہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام و رسولان اعظام کو مبعوث فرمایا، بھیجا. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کمالات و معجزات دے کر بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو رحمت لے کر آئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے تو رحمت لے کر آئے. الغرض سارے نبی رحمت لے کر آئے، سارے رسول رحمت لے کر آئے، مگر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سراپا رحمت بن کر آئے. کبھی تو کسی نے کبھی تو شاعر کہتا ہے فراقد مبارک البن رحمت کی ڈالی ہے، فراقد مبارک البن رحمت کی ڈالی ہے، اسے وہ کرتے ہیں رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے، اسے وہ کرتے ہیں رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان یوں فرمائی الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان کا رب ہے. اور آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت ہے. حضرات ہم مسلمانوں اور مومنوں ہی پر آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت محدود نہیں بلکہ عالم کی ہر شے کفار و مشرکین پر بھی رحمت ہے. رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے. ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے. حضرات گرامی اگلی امتوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں دنیا ہی میں عذاب آ جاتا تھا اور وہ برباد کر دیے جاتے تھے. قومیں آج تو ہوا اڑا لے گئی، قومیں سمود زلزلہ سے برباد کر دیے گئے، قومیں لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کی گئی، قومیں نوح طوفان میں غرق کر دیے گئے، قومیں بنی اسرائیل خنزیر و بندر بنا کر ہلاک کر دیے گئے. مگر اے ایمان والو اور اپنے آقا کریم دیکھو کفار مکہ نے کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے، شرک و بت پرستی کرتے رہے. اللہ جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط اور گندی تہمتیں لگاتے رہے اور ایسے ایسے مظالم اور سرکشی کا مظاہرہ کیا کہ زمین ان کی بدعمالیوں سے بھر گئی.
اور कांपने लगी और उन गुनाहों और जुर्मों के बावजूद आना न उन पर आसमान से पत्थर बरसाए गए, न उनकी बस्तियां उलट उलट की गई, न उनकी सूरतें मस्क हुई, बल्कि हद तो ये हो गई कुफार मक्का दुआ मांगा करते थे, अबू जहल अबू लहब वगैरह दुआ मांगा करते थे, या अल्लाह अगर वाकई कुरान और दीन हक है तो हम पर आसमान से अज़ाब नाज़िल कर दे, हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, और अल्लाह का काम नहीं उन्हें अज़ाब करे ए महबूब जब तक तुम उनमें तशरीफ फरमा हो। आज के मुस्तफा आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी क्या हुक्म फरमाते हैं, नजदी उसने मोहलत दी उस आलम में, नजदी उसने मोहलत दी उस आलम में, काफिरों मुर्तद भी रहमत रसूलुल्लाह की, काफिरों रहमत भी रहमत रसूलुल्लाह की। हजरत गिरामी मैदान अहद में काफिरों ने हमारे आका करीम मुस्तफा रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर से मारे, जिससे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हो गया और रुखे हुए खून से रंगीन हो गया। सहाबाए कराम बेचैन हो जाते हैं और अर्ज करते हैं उदू अलल मुशरिकीन, उदू अलल मुशरिकीन, उदू अलल मुशरिकीन, यानी हुजूर इन मुशरिकीनों के लिए, दुश्मनों के लिए हिलाकत व बर्बादी की दुआ फरमाइए। ये सुनकर रहमतुल लिल आलमीन ने मुस्कुरा कर फरमाया, मैं इस देर में कहर व गज़ब बनकर नहीं आया, बल्कि इस मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया था इन्नी लम उबद लानन व इन्ना बुस्तु रहमा, यानी मैं लानत भेजने वाला बनकर नहीं आया बल्कि मैं रहमत बनकर आया। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा, रहमत रसूल पाक की हर से पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर से पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। हजरत अबू जहल वो बदबख्त दिल काफिर इंसान है जिसने इस्लाम को मिटाने के लिए तरह तरह के मंसूबे तैयार किए, मगर उसके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए और इस्लाम रोज बरोज भूलता और फलता गया। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा तुम जितना दबाओगे, ये इतना ही उभरेगा तुम जितना दबाओगे। हजरत इकरामी अबू जहल लईन ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिलाक करने के लिए एक कुआं खुदवाया। जब कुआं तैयार हो गया तो उस पर घास फूस डाल दी ताकि कुएं का पता न चल सके। उस जालिम ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि तुम कुएं के आसपास कहीं छिप कर बैठना, जब मुसलमानों के नबी का यहाँ से गुजर होगा तो वो कुएं में गिर जाएंगे, तुम जल्दी से कुएं में पत्थर और मिट्टी डाल देना, मगर फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सब आका पूजे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुब्र की हरकत में कंधा जन, भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। चुनांचे आका करीम मुस्तफा रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होने वाला था तो आपके रब ताला ने आपको बता दिया ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस रास्ते से न जाना, इसलिए कि इस रास्ते में अबू जहल मलऊन ने आपके लिए एक वफदवा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हो गए और एक रिवायत में यूं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुएं के पास से गुजरे तो कुआं सिमट गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम शरीफ बढ़ाया और कुआं पार से गुजर गए और अबू जहल का मसला धरा का धरा रह गया। अबू जहल को जब मालूम हुआ कि हमारा मंसूबा फेल हो गया तो अबू जहल बड़ा परेशान हुआ और जब कुएं के पास पहुंचा तो खुद धोखा खा गया और कुएं में गिर गया। और अबू जहल ने अपने गुलामों को बुलाया, उसके गुलाम अबू जहल को जब रस्सी बांध कर निकालने लगते हैं तो क्या देखते हैं कि जितनी रस्सी नीचे करते हैं इतना ही कुआं नीचे होता जाता है और अबू जहल का बाहर निकलना दुश्वार हो गया। और अबू जहल ने कुएं से आवाज दी तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और उनको लेकर आओ, बेशक उनके अलावा मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, उनके सिवा मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। फिर अबू जहल के साथी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत रहमत में हाजिर हुए और अर्ज किया अबू जहल कुएं में गिर गया है, हमने उसको निकालने की बड़ी कोशिश की मगर नहीं निकाल सके। अब अबू जहल ने आपके पास भेजा है और वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा मुझे इसमें से कोई नहीं निकाल सकता। वाह क्या तू जो करम है, सहे बचा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा,
वाह क्या जूद व करम है सहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और नजदी उसने मोहलत दी कि उस आलम में है, नजदी उसने मोहलत दी कि उस आलम में है। काफिर व मुर्तद भी रहमत रसूलुल्लाह की, काफिर व मुर्तद भी रहमत रसूलुल्लाह की। हज़रात इकरामी, ये ताज्जुब की बात तो यह है कि वो अबू जहल ने फतवाया था कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें गिर जाएंगे और गिर जाएंगे, मगर अबू जहल खुद इसमें गिर गया। और ताज्जुब की बात तो यह है कि निकालने के लिए आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला रहा है। यानी अबू जहल जैसे शैतान को भी मालूम है कि हमारे आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे से बुरे को माफ फरमा देते हैं और अपनी रहमत से नवाज देते हैं। हज़रत इकरामी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार नहीं फरमाया, बल्कि कुएं के पास पहुंचे और अबू जहल से फरमाया इन अखरजुका मिन हाज़ल बीरी इन मदो इला मुहम्मद व अतूनी अतूमिनु बिल्लाहि व रसूली। अबू जहल ने वादा किया कि मैं ईमान ले आऊंगा। तो आका करीम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते रहमत आगे बढ़ाया और अबू जहल को निकाल दिया। तो अबू जहल कुएं से बाहर निकल आया तो कहने लगा आप बड़े जादूगर हैं, तो कहने लगा आप बड़े जादूगर हैं माज़अल्लाह ताला, और ईमान से महरूम रहा। हज़रत इकरामी, हमारे आका करीम मुस्तफा रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू जहल पर रहमत है तो हम गुलामों पर रहमत की शान क्या होगी। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा, रहमत रसूल पाक की हर से पे आम है, हर गुल में हर सजर में मोहम्मद का नाम है, हर गुल में हर सजर में मोहम्मद का नाम है। हज़रत इकरामी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हम एक सफर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक दरख्त के पास से गुजरे, एक दरख्त पर एक चिड़िया के दो बच्चे थे। हमने उन बच्चों को पकड़ लिया। उन बच्चों की माँ चिड़िया ने जब देखा तो उड़ते हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गिरी और फरियाद करने लगी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको किसने पकड़ा है। हमने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हमने पकड़ा है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ इसको अपनी जगह पर रखाओ। हज़रत इकरामी, हमारे आका करीम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत वो अजीम शान बारगाह है, ऐसी बारगाह हुई है और न क़यामत तक होगी। आज के मुस्तफा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं खुदा खुदा का यही है घर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहाँ आके हो, जो वहाँ से हो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। हज़रत इकरामी, हाँ यही वो बारगाह रहम करम है जहाँ हर किसी की फरियाद सुनी जाती है। हिरनी की फरियाद, चिड़िया की फरियाद हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और उनकी मदद फरमाते हैं। तो जब जानवर पर इस कदर मुशफ़िक़ व मेहरबान है तो हम गुलामों पर रहमत की शान क्या होगी। हम गुलामाने गोसो ख्वाजा रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर हर नमाज के बाद मदीना तैयबा की जानिब चेहरा करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करें अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या दाफ़िअल बलाई वल वबाई बिइज़्निल्लाह व अला असहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अर्ज करें या रसूल अल्लाह, खल्क़ के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद और तुम हो हाफिज़ व मुगीस, क्या वो दुश्मन खबीस तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसाने वाले, तमन्ना से पाते हैं सब पाने वाले, तेरा दिल चमका दे वाले। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है हम सबों को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। 1500 साल जिसने ईद मिलादुन नबी पर खुशियां मनाने की तौफीक अता फरमाए, झंडे लगाने की तौफीक अता फरमाए, अपनी दीवारों को लाइटों से सजाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।